Hello friends, welcome back to my channel, and today's topic is continuity, differentiability and directional derivative from real analysis. Actually in my previous video I got some comments regarding solution of calculus and real analysis problems. Some students said that they want solution of calculus and real analysis. So I am discussing here a very important topic from real analysis, continuity of a function at a point. This topic is from function of several variables. इससे गेट 2021 में क्वेश्चंस आए हैं एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. दिस थ्री फर्स्ट आई विल डिस्कस द थ्योरी एंड डेफिनेशन पार्ट, देन आई विल गो टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके, so coming to the point, continuity of a function at a point. So what is the definition? Let f d to R, where d is an open subset of R to the power n. Then f is said to be continuous at a point a1 a2 an, since this is a function of several variables, so we can have several variables here. X is a variable, x1 x2 xn, and this is the point where we have to check the continuity. If limit x tends to a, fx is equal to fa, and in other words you can say that f is continuous in terms of epsilon and delta. The definition is f is continuous at a point a1 comma a2 up to an belongs to D. D is open subset if for any given epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that this condition holds. That is mod of fx1 x2 xn minus f a1 a2 an is less than epsilon, where this is less than delta. ठीक है. So this is a very important definition. You can note it down. I am giving you few minutes. So this is the definition. और एक क्या होता है, in terms of epsilon and delta there is one more definition which says that f is continuous at a point AB if for given epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that fxy minus f at AB less than epsilon whenever x minus a less than delta and y minus b less than delta. So friends, this is another definition, but the difference is only here we are talking about the open, D is an open subset of Rn, so it is a definition with respect to this statement, and this is another definition of continuity. But in the question given in GATE 2021 we will use this definition. According to this definition we will prove the continuity of the function. So I am writing this and you can note it down also, and you must note this and this. These are the important definitions. Okay, so after this I will discuss differentiability. Continuity of a function at a point means you will be given a point and you have to find whether the function is continuous at that point or not. Okay, so I am erasing it. Now coming to differentiability of a function. हो गया सबका. So you have to remember this definition. It's a very important concept of real analysis में continuity, differentiability these are very important, and directional derivative से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. Now coming to differentiability of a function. Okay, so what is the definition? fxy is said to be differentiable at a point AB if there exist constants alpha and beta, and depending on the function f, and the function such that f of a plus h b plus k minus f a b minus h alpha minus k beta equal to h of phi 1 h k plus k
of phi 2 hk or root over h square plus k square phi hk and limit hk tends to 0 0 phi hk equal to 0. So this is the definition of differentiability of a function. इसमें मेनली हम लोग को क्या करना है, एंड वन मोर थिंग, अल्फ़ा एंड बीटा ना. अल्फ़ा इज़ एफ एक्स एट ए बी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड बीटा इज़ partial derivative of the function with respect to y at a b. So this is the thing where partial derivative of x कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h b minus f of a b by h, and partial derivative of function with respect to y is defined as limit k tends to 0 f of a b plus k minus f of a b by k. So this is very important टॉपिक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. इससे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, नेट में भी बहुत पूछा जाता है. डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट with the from the view of net on get both. So you should note it down and you should understand it very clearly. So अब क्या बोल रहा है, coming to the point, f x y is said to be differentiable at a point a b if there exist constants alpha and beta such that this is the main part of the definition. f a plus h minus f a b equal to h alpha और माइनस h alpha माइनस k बीटा इज इक्वल टू इधर दिस और दिस. तो ये जो हम लोग चूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द गिवन फंक्शन, क्वेश्चन में किस तरह का फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं कि किस में हम लोग को ज़्यादा इजी हो रहा है फाइंड करना. अगर फंक्शन सपोज दिया हुआ है इस तरह के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स वाई समथिंग लाइक दिस, कुछ भी गिवन है फंक्शन, तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो हमें ये वाला चूज़ करेंगे तो हम लोग आराम से कैंसिल आउट करके इजीली फाई एच के निकाल सकते हैं. अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिया है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा ईजी है. तो डिपेंडिंग ऑन द गिवन फंक्शन वी विल चूज़ दिस आर एच एस, एंड दिस इज़ द मेन थिंग. ए एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच अल्फा माइनस के बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा are partial derivatives with respect to x and y of the function, and they are given by this formula. So you should note it down. अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे रियल एनालिसिस का, उसमें हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे एंड इजीली वी विल फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, आई एम रबिंग इट. नाउ कमिंग टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट्स वेरी इजी. डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन है, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, directional derivative I am writing short in dd of a function f at c in the direction of unit vector u denoted as duf at the point, you can write it like this, or this is defined as इसका हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच यू माइनस ऑफ f c डिवाइडेड बाई h. ठीक है, where c is the point. Here friends, don't confuse in c and u. A function, the directional derivative of a function f at c
इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u। तो जब भी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो यू ऑलवेज विल बी गिवन अ पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू विल बी ऑलवेज बी गिवन द क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ गिवन एज दिस लिमिट इफ़ इट एग्जिस्ट। इसको एग्जिस्ट करना है, हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो इस लिमिट की वैल्यू होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड वन मोर थिंग, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में और भी एक चीज़ क्या होता है, एक और डेफिनेशन भी है, ये भी नोट कर लीजिए। एफ एक्स एट सॉरी this is the directional derivative of u in direction of unit vector u where u is the point AB, okay। so this is the formula for this। तो यहाँ हमारा एक जो क्वेश्चन आया है इस बार गेट में वो इस डेफिनेशन से बनेगा। दिस इज ऑल्सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फार्मूला और यू कैन राइट इट एज where u is this unit vector AB, okay। so these are the important points, आप नोट कर सकते हैं, you can note it down, then we'll move to the question part। where this f is a differentiable function of x and y। so I am explaining you these topics in the most possible in the detailed form, most possible detailed form, and understanding these things you will be very comfortable in solving the questions after this। बस ये definitions याद करना है and okay, I think you have noted it and now moving to the question part। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गिवन था एक फंक्शन एक बार आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। वाई स्क्वायर बाई एक्स एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 0, आई थिंक यही फंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शंस कुछ थे, स्टेटमेंट गिवन थे दो, एक था एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, at xy equal to 0 0, point is 0 0, and the second statement is the directional derivative of f at 0 0 exists in the direction of every unit vector। So friends, this is the question, these two statements are given and the options are like p is true, q is false, or p is false, q is true, both are false, both are true। These are the four options। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उन तीनों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पहले में पूछा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई इक्वल टू 0 0। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी हमारी, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हम चेक करेंगे, पॉइंट इज गिवन एट 0 0 भी हमें चेक करना है। तो कंटिन्यूटी की फंक्शन की डेफिनेशन से क्या था, एफ एक्स वाई माइनस एफ
0 0 इक्वल टू ये जो x1 x2 xn था, तो उसमें इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y है, और जो पॉइंट गिवन था a1 a2, तो यहाँ हमारा पॉइंट गिवन है 0 0, सो f x y माइनस f 0 0 इज इक्वल टू, हम पहले इसको लिखते हैं, और f 0 0 इज 0, ठीक है, दिस इज द value. And see mod of sine function, whatever mod sine x sine y sine something else, mod of sine function हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है. यूजिंग दिस ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, देन वी कैन से दैट दिस इज सिंस मॉड ऑफ साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. अब देखिए, जब हम डेफिनेशन बता रहे थे कंटिन्यूटी का, तो उसमें क्या था, एप्सिलॉन एंड डेल्टा वाली डेफिनेशन से, इफ़ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x1 माइनस a1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn माइनस an स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, ठीक है. तो यहाँ वाले केस में ये जो फंक्शन हमारा आया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है बेसिकली, a1 इज़ 0 ना, एंड ये हमारा अगर डेल्टा से लेस हो जाए ये फंक्शन, तो अगर हम लोग इसको लेस देन एप्सिलॉन बोले एंड वी गेट फंक्शन डेल्टा ग्रेटर फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस इज लेस देन डेल्टा, देन वी गेट द फंक्शन एज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो अब ये जो यहाँ आया है, इफ वी टेक दिस लेस देन एप्सिलॉन whenever this, sorry not mod, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा. तो ये हमारा, अगर इस केस में डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन चूज़ करते हैं हम, देन दिस क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, ठीक है. तो मेनली कुछ नहीं था, ये बस डेफिनेशन को यूज़ करना है कि अगर ये लेस देन डेल्टा हो जाए, आप डेफिनेशन अगर आपने नोट की होगी तो गो बैक टू द डेफिनेशन पार्ट एंड सी देयर एंड दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस इज लेस देन डेल्टा. तो ये जब हमारा एप्सिलॉन चूज़ कर लेंगे डेल्टा के इक्वल, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा हियर. सो दिस इज द कंटिन्यूटी पार्ट. तो हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0. तो पहला पार्ट तो ट्रू हो गया. नाउ वी हैव टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, उसकी डेफिनेशन थी एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच अल्फ़ा माइनस के बीटा इक्वल टू सम आर एच एस, टू टाइप्स ऑफ आर एच एस आर देयर. तो अब हम देखिए क्या करेंगे, पहले तो डेफिनेशन लिखिए. आई एम एक्सप्लेनिंग इन द मोस्ट सिंपल वे एंड बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये. आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है. तो हमने ये फंक्शन क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखिए जब हमारे क्वेश्चन में इस तरह का टर्म आ रहा है तो हम आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें ये वाला चूज़ करना ज़्यादा ईजी होगा. और एक जो था एच ऑफ फाई वन प्लस के ऑफ फाई टू एच के, वो वाला हम लोग इस फंक्शन के लिए चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ये हमारा आ गया. अब इसको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है या नहीं. तो ये जो फंक्शन है एफ ए प्लस एच बी प्लस के, वेयर वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ए बी. So here the point AB is given as 0 0, means you have to check the differentiability as 0 0. तो अगर हम लोग पुट करेंगे A is 0 then K H K minus F at 0 0. अब मेन टास्क इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा बीटा का मैंने क्या बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसकी डेफिनेशन थी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ठीक है. मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ सो दैट. अब देखिए a एंड b इज 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0 माइनस f एट 0 0 बाई h.
अब हम लोग फंक्शन में h x की जगह पे और y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन 0 बाई एच, साइन 0 इज़ 0 एंड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वी विल गेट 0 एंड f0 0 इज 0, 0 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा निकालना है, लिमिट k टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f a b प्लस k, इस केस में हमें 0k मिलेगा माइनस f0 0 डिवाइडेड बाई k एंड दिस विल गिव यू सेम, अगर x भी 0 है हमारा तो 0 प्लस दिस लिमिट k टेंड्स टू 0, और इस केस में नीचे 0 हो जा रहा है तो हम लोग लिमिट निकाल लेंगे, रूट ओवर k स्क्वायर साइन ऑफ k स्क्वायर बाई 0, दिस इज साइन इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड। इस तरह के फंक्शन आ गया तो हम देखेंगे कि इसका लिमिट हम k टेंड्स टू 0 पे करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, ठीक है, 0 0 0। अब ये दोनों हमारी अल्फ़ा बीटा 0 आ गई, तो अब हमें इस पे पुट करना है, ठीक है। ये तो बात थी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना था। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन h के, जब h और k पुट करेंगे एक्स वाई के प्लेस पे, f0 0 0 है, ये दोनों 0 आ चुका है, अल्फ़ा बीटा 0 था, और एक ये हमारा जो फंक्शन है, मेन टारगेट क्या है, हम इस फंक्शन को फाइंड करेंगे एंड देन यू हैव टू चेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन h के टेंड्स टू 0 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, -0, तो ये इतना ही हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, फंक्शन फाई h के हमें क्या मिला, दिस इज द फंक्शन। अब डेफिनेशन में क्या था, लिमिट, अगर लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 फाई h के इक्वल टू 0 होता है देन इन दैट केस वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अब हमें फाइंड करना है लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 ऑफ फाई h के, दैट इज साइन k स्क्वायर बाई h। अब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं और हमें लिमिट फाइंड करना होता है, वी कैन चूज़ अ पाथ along which we find the limit, or you can like you can substitute h equal to m k square, or you can choose k equal to m root h, whatever you like। तो एक पाथ चूज़ करते हैं हम और उस पाथ के अलॉन्ग हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। इस केस में अगर हम लोग h को m k स्क्वायर रख रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, साइन k स्क्वायर कैंसिल होगा 1/m h के टेंड्स टू 0 0। तो अब ये क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, साइन 1/m आ गया, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन h एंड के बट इज़ डिपेंडेंट ऑन m, मीन्स इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। कोई भी पाथ हम चूज़ कर रहे हैं तो उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इन दैट केस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल दैट 0 0। सिंपल, समझ में आया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, डेफिनेशन थी, हमने अल्फ़ा निकाला, हमने बीटा निकाला, हमने फाई h k निकाला एंड देन वी फाउंड द लिमिट ऑफ दैट h k, फाई h k। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इन दैट केस द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट, ओके। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैंने अभी डेफिनेशन बताई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इज गिवन बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus hu minus of fc by h, where c is the point, c is the point means ये क्या है, c यहाँ 0 0 है and u in the direction of every unit vector, तो you can choose any arbitrary unit vector, suppose a1 a2, किसी arbitrary unit vector के लिए चूज़ कर लेंगे, इसके लिए दिखा देंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट विल एग्जिस्ट फॉर एवरी इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर। तो अब ये क्या होगा, 0 0 h ऑफ a1 a2 माइनस f ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आया, 0 प्लस h a1
and 0 plus HA2 by H, लिमिट H टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, HA1 HA2 मीन्स फंक्शन में पुट करना है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ HA1 स्क्वायर H स्क्वायर A2 स्क्वायर रूट साइन ऑफ A2 स्क्वायर H स्क्वायर बाई X इज A1H एंड लिमिट H टेंड्स टू 0। H रूट से बाहर आया and sine of H, this is the function and limit H tends to 0। जब लिमिट H टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 साइन 0 0 एंड ऑल्सो दिस H इज है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at 0 0 एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा आप वो टिक किए होंगे तो ये सही है, एंड दिस इज़ द लॉजिक एंड दिस इज़ द थ्योरी बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया था एंड आई एम trying to find more questions and give you the solution of those questions in the most possible detailed way. Okay, thank you. Have a good day.